सो आई हैव गिवन यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. ओके, अब हम अपने MCQ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी. फर्स्ट इज कमिटेड जुडिशरी, सेकंड इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, थर्ड इज इलेक्टेड गवर्नमेंट, फोर्थ इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. सी, हमें सेफगार्ड करना है लिबर्टी को. हमारी लिबर्टी कब सेफगार्ड होगी? जब कमिटेड जुडिशरी होगी. सी, कमिटेड जुडिशरी इज नॉट समथिंग वेरी गुड फॉर अ डेमोक्रेसी. सो कमिटेड जुडिशरी विल नॉट बी द आंसर. क्यों? क्योंकि जो कमिटेड जुडिशरी होगी वो कभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएगी, और जब वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं जाएगी तो हमारी लिबर्टी कैसे प्रोटेक्ट करेगी? लाइक अगर गवर्नमेंट का कोई एक्शन हमारी लिबर्टी ले रहा है, so committee judiciary will not help us. So first will be wrong. Centralization of powers, this is also wrong. Power will be there in the hand of few leaders. Elected government is not the best safeguard of liberty जो हमसे पूछ रहे हैं. Basically separation of power will be the answer. Why? Because executive and judiciary will be different. इनकी power separated होंगे. So executive कोई decision ले रहा है जो हमारी liberty को harm कर रहा है. In that case judiciary can take action for the protection of our liberty. So best safeguard of liberty in a liberal democracy will be D, separation of powers. Read every question, see best possible answer क्या हो सकता है. Okay, and remember this thing, committed judiciary is not good for a liberal democracy. Okay, don't think कि committed judiciary means a judiciary which is very much committed to its work. Here the meaning is a judiciary which never goes against the policies of the government. Next, which Congress session passed the resolution of fundamental rights in 1931? I already told you. Fundamental rights 1931 किस सेशन में पास हुआ था? कराची सेशन. किसने प्रिसाइड किया था ये सेशन? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, तो आंसर विल बी बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट, द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज करेक्ट, वी नो. इन 1928 नेहरू रिपोर्ट ने बात की थी फंडामेंटल राइट्स की. बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेफर टू फंडामेंटल राइट्स. सी, ऑगस्ट ऑफ 1940 इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स. डी, क्रिप्स मिशन 1942 रेफर टू फंडामेंटल राइट्स. ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स की हैं एंड ब्रिटिशर्स विल नॉट टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स टू इंडियंस. ओके, सो आंसर इज ए. हमारी नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई थी उसी ने बात की थी अबाउट द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स? सी, मैं आपसे बोलती हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं, हु सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPPCS स्पेशली. Let's read the question. Who said the following words about fundamental rights? A fundamental right should be looked upon not from the point of view of any particular difficulty of that moment, but as something that you want to make permanent in this constitution. So this was said by Jawaharlal Nehru. कि fundamental rights को हमें इस तरह नहीं देखना चाहिए किसी भी point of view की of any difficulty of that moment, but हमें इस तरह देखना चाहिए that हमें fundamental rights को एक permanent part बनाना है अपने constitution का. Okay, so this is said by Pandit Nehru. This is very important. This can be repeated again. MPPCS में this is asked and this can be asked in UPPCS also. So remember this. Next, who among the following persons said for the fundamental rights? Against who said this? A pledge to कि fundamental rights is a pledge to our people and a pact with civilized world. किसने कहा है ये? Pledge to our people, pact with civilized world. This is said by Dr. S. Radhakrishnan. Okay, who said fundamental rights is a pledge to our people and pact with civilized world? Option will be D. Next, फंडामेंटल राइट्स आर, एवरीवन नो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल. क्यों? क्योंकि अगर हमारे ये राइट्स वायलेट होते हैं हम अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स. नेक्स्ट, तो यहाँ पे आंसर विल बी ए, जस्टिफिएबल. आई थिंक इट शुड बी जस्टिसिएबल. द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज, हम राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है. इट इज डेमोक्रेटिक, इट इज पब्लिक वेलफेयर. आई थिंक फंडामेंटल राइट्स इज नॉट समथिंग लाइक रिलेटेड टू पर्टिकुलर, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इसलिए डेमोक्रेटिक है. इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ये तो पक्का आंसर में होना चाहिए. फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी. क्लियर? अगर आपको एक चीज़ से भी पता है कि हाँ दिस तो श्योरली शुड बी देयर इन द आंसर. लाइक फोर्थ पॉइंट, इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. वी नो फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. एंड हमें पता है फर्स्ट भी होना चाहिए, फोर्थ भी होना चाहिए. फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन सी. एंड फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट, पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट. पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट, ये हमारा आर्टिकल 13 में भी गिवन है कि कोई भी लॉ बनेगी जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करेगी या विच विल बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो वॉइड होगी. सो फंडामेंटल राइट्स आंसर विल बी सी. इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट. इसीलिए हम उन्हें फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स ए, कैन नॉट बी सस्पेंडेड. B, can be suspended by order of Prime Minister. C, can be suspended on the will of President. D, can be suspended during emergency. ये हम पढ़ चुके हैं that fundamental rights can be suspended during emergency. कौन से आर्टिकल्स पढ़े थे हमने? आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359. आर्टिकल 358 डील करता है रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19.
एंड ये बाकी सारे राइट्स की बात करता है, उनकी सस्पेंशन की, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. दे आर अ गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन. यस, करेक्ट. ऑब्वियसली अगर स्टेट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन कर रहा है सो फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट विल बी करेक्ट. सेकंड, दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3. वी नो फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन पार्ट 3. तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड, दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ, दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए. दिस इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर लाइक बिल ऑफ राइट्स, क्योंकि हमने यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ही उन्हें कॉपी किया है. तो फोर्थ शुड नॉट बी देयर इन द आंसर. फर्स्ट भी करेक्ट था अपना, सेकंड भी करेक्ट है, एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड. आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Next, which article of the Constitution gives precedence to constitutional provisions over the laws made by the Union Parliament or State Legislature? I told you, ये हमारा आर्टिकल 13 है. In the starting, I told you that what does Article 13 says? That any law which is made in violation of the fundamental rights will be void. यहाँ पर वही चीज़ given है. Article 13 makes provisions that pre-constitutional laws and post-constitutional laws, if inconsistent with the provisions of fundamental rights, shall be void. Okay. So Article 13 will be the answer. Next, the main object of Article 13 of Indian Constitution is to secure the paramountcy of the Constitution regarding. We know Article 13 का main aim क्या है? Fundamental rights को protect करना from inconsistent laws. So answer will be B. Next, in the Indian Constitution the right to equality is granted by 5 articles. They are, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आर्टिकल 14 to 18 ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं. So it is option C. Clear? Next, the right to equality is given by, you must know, right to equality article 14 to 18. 13 नहीं, 14 है, 15 है, 16 है. So 2, 3, 4 should be the answer. Clear? एक बार आपको ऊपर से easily पता है फंडामेंटल राइट्स की 14 to 18 क्या है. 19 to 22 अपना राइट टू फ्रीडम है. 23 and 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. 29 and 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. And article 14 to 18 हमें पता ही है, right to equality. So you will be able to deal with most of the questions. Okay. Next, which one of the following articles of the Indian Constitution puts an absolute limitation on legislative power? It is article 14. See, article 14 क्या provide करता है? Equality before law. Okay. The state shall not deny any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक आई फॉरगॉट टू टेल यू, कि कुछ राइट्स हैं जैसे 15, 16, 19, 29 एंड 30. ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल हैं. इसके अलावा बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स इंडियंस एंड फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल हैं. क्लियर? बट आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 इट इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स. इट इज़ नॉट अवेलेबल टू दैम. ये सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है. ओके, सो रिमेंबर दिस. 15, 16, 19, 29, 30. रिमेंबर लाइक दिस. 15, 16, 19, 29, 30. रिपीट इट. 15, 16, 19, 29, 30. दीज आर द राइट्स जो सिर्फ अपने इंडियंस को अवेलेबल हैं. फॉरेनर्स को ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अपना आर्टिकल 14 है. क्लियर? In which article of the Constitution equal protection of law is provided? Same question, Article 14. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following? Basically ये कह रहे हैं कोई एक ऐसा लॉ जो अनकंट्रोलेबल डिस्क्रिशनरी पावर दे दे. जब अनकंट्रोलेबल डिस्क्रिशनरी पावर होगी तो इक्वालिटी तो रहेगी ही नहीं ना इस केस में. सो ये कौन सा राइट अपना वायोलेट करेगा? आर्टिकल 14. सो आंसर विल बी ए. Clear? Next, what is meant by rule of law? A, one act for all and one judiciary for all. B, one act for all and one state for all. C, one state for all and one judiciary for all. D, all acts for one and one judiciary for all. C, rule of law means like there will be rule of law, everyone will be treated equally in the eyes of law. Clear? Means one act for all and one judiciary for all. This suits perfect. One act for all and वन जुडिशरी फॉर ऑल. बेसिकली रूल ऑफ लॉ इम्प्लाई कर रहा है कि लॉज क्रिएट होंगे, उनका इन्फोर्समेंट, उनकी रिलेशनशिप, हाउ इट विल बी रेगुलेटेड. ओके,
नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है। इन्होंने आर्टिकल 15 पूछा है तो वो भी इसी कैटेगरी में होगा, मीन्स आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, which one of the following fundamental rights was amended as a result of the decision of the Supreme Court of India in the state of Madras versus Champakam Dorajan case? सी, इन दिस केस जो अपना राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना, हमने इसको अमेंड किया था। इसमें हमने आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 ऐड किया था, किस अमेंडमेंट से? फर्स्ट अमेंडमेंट से, ठीक है। वाई? क्योंकि हमने इसमें स्पेशल प्रोविजंस ऐड किए थे फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है किस केस में, नहीं, इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज अमेंडेड, कि हमने इस केस में कौन सा फंडामेंटल राइट अमेंड किया था। सो वी हैव टू रिमेंबर कि हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को अमेंड किया था, जो अपना आर्टिकल 15 है। इसमें हमने क्लॉज 4 ऐड किया, एंड हमने क्लॉज 4 क्यों ऐड किया? ताकि हम स्पेशल प्रोविजंस बना पाएं कुछ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। क्लियर? सो दे हैव आस्क्ड कि इस केस में विच राइट वाज अमेंडेड। Let's see question number 22. Under which article of the Constitution reservation in admission to educational institutions including private and unaided to OBC SC ST is made? So आप याद रखना, जब रिजर्वेशन की बात आएगी ना, दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 5। क्लियर? यहाँ पे SC एंड ST के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऑफ दिस आर्टिकल एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस रिजर्वेशन से रिलेटेड, किसके लिए? SC के लिए, ST के लिए, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इन दिस रिजर्वेशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो रिजर्वेशन की जब बात आएगी, रिमेंबर दीज बोथ आर्टिकल्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 5। यहाँ पर अपना पूछा गया है OBC SC ST, सो आर्टिकल 15 क्लॉज 5। क्लियर? Okay, next question. The provisions of reservation of OBC is made in the constitution under which article? ठीक है, A आर्टिकल 13 से, आर्टिकल 13 में तो नहीं है ना, 14 में है, आर्टिकल 14 एंड 15। C है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट OBC के लिए इट इज ऑप्शन C, 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। 24th, according to which article of the Indian Constitution no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state? So this is Article 16 Clause 2. ठीक है, इसमें आप you cannot discriminate any person on these grounds. This is Article 16 Clause 2. And Article 15 में क्या था? Religion, race, sex, caste, place of birth. So याद रखना, 15 में ग्राउंड्स थोड़े कम हैं, 16 में ज़्यादा हैं। इसमें डिसेंट भी ऐड हो जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी, प्लेस ऑफ बर्थ तो दोनों में था, रेसिडेंस ऐड हो जाता है। ओके, दीज टू आर एडेड इन 16th। सो ग्राउंड्स भी याद रखना, 15 के ग्राउंड्स क्या थे एंड 16 के ग्राउंड्स क्या है। सी यहाँ पे गिवन है रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड्स हैं। ओके, 17 हमें पता ही है अनटचेबिलिटी, एंड 64 भी हमें पता है OBC के लिए रिजर्वेशन की बात करता है 16(4). नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? सो आपको याद रखना है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ बात पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की आ रही है। सो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज डेल्ट इन आर्टिकल 16। बस आपको क्लॉजेज लर्न करनी है, 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2। क्लियर? नेक्स्ट, एंड 16 से मुझे याद आया 15, 16, 19, 29, 30। रिमेंबर, बार बार याद करते रहो, दीज आर ओनली अवेलेबल टू इंडियंस। ओके, दीज फंडामेंटल राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू इंडियंस। Next, which one of the following is not included in the fundamental right to equality as enshrined in the Indian Constitution? Equality before law है, social equality yes, equal opportunity yes, economic equality no. Economic equality is a wider term, you know, it is not guaranteed under right to equality of Article 14. उन्होंने right to equality के अंदर पूछा है, so economic equality is not there. So option D will be the correct answer. Okay, now let us see the next question. It is assertion and reasoning based. Okay, assertion A. The state can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political spheres. ठीक है. Reason, among equals the law should be equal and equally administered. See, जो अपना assertion है इसका meaning है state can treat unequal differently.
अनइक्वल मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, सेम एज के हैं, one is having all the facilities regarding education, regarding proper diet and everything. Second one belongs to a very poor background. Okay, second child belongs to a very poor background, उसके पास इतनी facilities नहीं है. So यहाँ पर state इस बच्चे के लिए special opportunities create कर सकती है social, economic and political spheres में. Okay, because they don't have same opportunities available. तो स्टेट इस केस में सेकंड बच्चे के लिए क्रिएट कर सकती है. दिस इज व्हाट असर्शन ए मीन्स. रीजन अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड. यस, दिस इज अ प्रॉपर रीजनिंग फॉर इट. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, रॉन्ग. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, रॉन्ग. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रॉन्ग. डी विल बी द करेक्ट आंसर कि दोनों ही करेक्ट हैं एंड दोनों ही दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्लियर और नॉट? Next, Statement 1. Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16 Clause 4. 16 Clause 4 आपको एकदम क्लिक होना चाहिए, related to OBC. Under 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Okay. Statement 2 है. Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. See, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफाइन है, ये डिफाइन है, मोस्टली वो रॉन्ग होता है. ओके, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. इट इज़ इन ऑप्शन सी. स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज वेरी न्यूट्रल कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स में ऐसी बात कही है कि आर्टिकल 16(4) के अंडर जो रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है वो लिमिटेड होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर? So yeah, this is correct and very neutral statement. But statement 2 is incorrect that Article 335 defines the term efficiency. Next, under which amendment act was the reservation and promotion of scheduled caste and scheduled tribe ensured? By inserting clause 4A in Article 16. So remember, हमने clause 4A Article 16 में OBC के रिजर्वेशन के लिए जो ऐड किया था, it was added by 77th Amendment Act of 1995. Clear? 77th Amendment. Next, which of the following enables the Supreme Court of India to deduce a fundamental right to equal pay for equal work? Okay, मतलब इनमें से किन प्रोविजंस ने इनेबल किया होगा? ठीक है. फर्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट यूज इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. बी, ए रेड विद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. ए रेड विद आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. ए बी सी ऑल रेड टुगेदर. ठीक है. बेसिकली जितने भी हमने ऑप्शंस पढ़े हैं सभी हमें रिड्यूस करते हैं. दे ऑल रिड्यूस दैट फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क शुड बी देयर. हमें पता है आर्टिकल 14 भी क्या है. व्हाट इज इट? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 16 वी नो व्हाट इज इट रिलेटेड टू? अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, राइट? एंड सोशलिस्ट वर्ड इफ आई टॉक अबाउट इन द टर्म्स ऑफ प्रीएम्बल इट ऑल्सो रिड्यूसेस टू a fundamental right to equal pay for equal work. So accordingly option D will be the most and best suitable answer for this. Next, which of the following articles read with the word social? I think it is the same one. Next, under what provisions of the constitution untouchability has been abolished? See, everyone knows untouchability article 17. Okay, and अगर आपके पास कैटेगरी पूछी जाएगी so untouchability article 17 किस कैटेगरी के अंदर आता है? right to equality, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कवर होते हैं. बट यहाँ आपसे सिंपली अनटचेबिलिटी का आर्टिकल पूछा है, सो यू विल राइट ऑप्शन सी. नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? सेम क्वेश्चन, आर्टिकल 17. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? सेम आंसर, आर्टिकल 17. नेक्स्ट, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. Next, same, repeatedly same question is being asked. Which one of the following articles of the Constitution abolish untouchability? Option B, Article 17. Next, under which article scheduled castes and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights? So it is Article 17 को C. How the question is framed differently. Article 17 of the Constitution provides abolition of untouchability and its practice in any form. It is a statement of principle with the objective to remove humiliation and multifaceted harassment meted out to Dalits and to ensure their fundamental socio-economic, political and cultural rights. See, जो अपने SC ST हैं, they are known as Dalits, तो इनकी fundamental socio-economic, political and cultural rights, basically अगर हम Article 17 की बात करें, they have been humiliated through this. Untouchability उनके खिलाफ प्रैक्टिस होती थी. ओके, सो यही एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, जिसने इन्हें ग्रांट किया है सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स. SC ST के लिए पूछा गया है. ओके, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं दे आर फॉर एवरीवन, बट पर्टिकुलरली SC ST के लिए जो उन्हें ग्रांट करता है फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट,
वो है आर्टिकल 17, क्लियर, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हेन अनटचेबिलिटी ही उनके खिलाफ प्रैक्टिस नहीं होगी, ऑटोमेटिकली सेवरल राइट्स विल बी ग्रांटेड टू देम, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बी, राइट टू फ्रीडम, सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डी, राइट टू इक्वालिटी। सी, अनटचेबिलिटी पढ़कर अनटचेबिलिटी सीम्स एज एन एक्सप्लॉइटेशन, तो मोस्टली बच्चा ऑप्शन ए मार्क कर देगा, बट नो, आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी एंड हमारा आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। इन्होंने पूछा है अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल, सो इट इज आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी। प्रोहिबिशन एंड एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी मे बी अचीव्ड बाय, ठीक है, मेकिंग लॉज, यस, अगर हम स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हाँ तो हम कर सकते हैं प्रोहिबिट। इम्प्रूविंग एजुकेशन, यस। पब्लिक अवेयरनेस, यस। प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विसेज, नो। आई थिंक दिस इज, हमें देखना है लाइक सबसे ज़्यादा वाइड आंसर हमारा किस में आ रहा है। मेकिंग लॉज, यस, हम लॉज बनाकर एबॉलिश कर सकते हैं अनटचेबिलिटी। एजुकेशन को इम्प्रूव करके भी, लाइक थ्रू एजुकेटिंग पीपल। पब्लिक अवेयरनेस, यस, थ्रू कैंपेन्स एंड ऑल हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड सर्विसेज, आई थिंक इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन कि आप जॉब एंड सर्विस प्रोवाइड कर दो अनटचेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए, क्लियर। So accordingly option A will be the correct answer. 40. Following are the two statements, one is labeled as assertion and the other is as reason. Assertion is untouchability is the worst form of structural violence. Yes, you are humiliating someone, and humiliating, I think it is one of the most important criteria which violate the fundamental and human rights. So untouchability is a form of structural violence, this is correct. Reason, untouchability has been practiced in the name of religious sanctions, this is also correct. अनटचेबिलिटी मोस्टली लाइक दलित्स वर ट्रीटेड एज डाउन ट्रोडन, सबसे लो क्लास उन्हें ट्रीट किया जाता था। सो एक तरह से मैनी पीपल इसे यूज़ कर रहे थे एज रिलीजियस सैंक्शन कि आप सबकी जाति सबसे लो है, दैट इज़ वाई आप इसलिए ह्यूमिलिएट हो रहे हो। सो बेसिकली इट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंस, येस, एंड रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग क्यों, क्योंकि रिलीजियस सैंक्शन के नेम पर काफ़ी सालों से प्रैक्टिस होती हुई आ रही है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स, आपको पता होना चाहिए। 14 to 18 है राइट टू इक्वालिटी, 19 to 22 है राइट टू फ्रीडम, 23 and 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 25 to 28 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड 29 and 30 है अपना कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इन्होंने पूछा है राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल्स में आता है, वो आता है आर्टिकल 19 to 22, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following freedoms is not guaranteed by the Indian Constitution under Article 19? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था आर्टिकल 19 का, एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये तो अवेलेबल है। इन्होंने पूछा है क्या गारंटेड नहीं है। बी, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज द करेक्ट आंसर। वाई, ये ओरिजिनली था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसे आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया है अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, ओके। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये अब लीगल राइट बन गया है, राइट टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। सी भी पार्ट है, डी भी पार्ट है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ओके। सो याद रखना किस अमेंडमेंट से होता है, 44th। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज आर नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)A? सी, आर्टिकल 19(1)A में आपके पास जो राइट्स हैं वो आपको यहाँ मेंशन है। फर्स्ट इज राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट टू असेंबल पीसेबली, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आर्टिकल 19(1) में जो राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज है तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए, आर्टिकल 14 का पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 and 16 डील्स विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, 16 डील्स विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो बेसिकली जो फर्स्ट है ये पार्ट नहीं होगा बिकॉज ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर आता है, अंडर आर्टिकल 15-16। पर्टिकुलरली यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सो ये आर्टिकल 16 के अंडर आएगा, नॉट अंडर आर्टिकल 19(1)A। सो इन्होंने पूछा है कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, सो अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन ए इंक्लूड नहीं है आर्टिकल 19(1)A के अंदर, सो ए विल बी द आंसर। राइट टू असेंबल पीसफुली या आर्टिकल 19 का पार्ट है, राइट ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन भी है, ओके। राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ये अपना आर्टिकल 16 में आता है, क्लियर, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। तो राइट टू फ्रीडम का पार्ट ये नहीं होगा एंड ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। Next, in which article the fundamental rights to freedom of speech and expression is provided? Freedom of speech and expression, you must know article 19. After doing all these MCQs आप एक बार पेयर एक्ट के थ्रू सारे आर्टिकल्स से गो थ्रू करोगे, लाइक 19(1)A में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, क्लियर। नेक्स्ट, which article of the Constitution of India is related with freedom of press?
सिर्फ फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं है गिवन कि हाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस, बट आर्टिकल 19 के अंदर हमारे पास पावर है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर? तो इसी के अंदर ही हमारा आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। बट हमेशा याद रखना ये एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है ऐसे गिवन कि राइट टू फ्रीडम ऐसे, सॉरी राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ऐसे नहीं है गिवन। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही हम इसे काउंट करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द फ्रीडम ऑफ प्रेस? सेम क्वेश्चन, आर्टिकल 19। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन सी। नहीं देता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लियरली राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस बोलकर ऐसे कोई राइट नहीं देता हमें, बट ये हमारा इंक्लूडेड है अंडर आर्टिकल 19(1)(a). 19(1)(a) किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)(a). C19 के जितने भी आर्टिकल्स हैं आप एक बार गो थ्रू कर लो, लर्न करने का ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया, सेम 19(1)(a). ऑब्वियसली न्यूज़ पेपर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेस, और जब हम प्रेस को राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस को आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर काउंट कर रहे हैं, सो फ्रीडम ऑफ न्यूज़ पेपर विल ऑल्सो बी काउंटेड इन आर्टिकल 19(1)(a). 19(1)(a) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, the Supreme Court held that hoisting the national flag atop the private buildings is a fundamental right of every citizen under. It is also under Article 19(1)(a). सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट अगर आपको नेशनल फ्लैग होस्ट करना है एट योर प्राइवेट बिल्डिंग्स एंड ऑल, सो दिस राइट इज गारंटेड टू यू। किसमें? वही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली इट इज आर एक्सप्रेशन दैट वी वांट टू शो अ लव फॉर आवर कंट्री, लव फॉर आवर नेशनल फ्लैग, तो हम कहीं पर भी होस्ट करें। ओके, so this is fundamental rights के अंदर 50 questions we have dealt in this video. In the next video हम इसके आगे के questions deal करेंगे। okay, so everyone try to read all these answers from घटना चक्र once again, खुद से solve करने का try करो। okay, we will meet in another video.